Now the next topic is the difference between .NET and Java. Again I repeat, next topic is the difference between .NET and Java. So if we talk about .NET, आपको पता है it is developed by Microsoft Corporation, वो Microsoft company का है. And if we talk about Java, it is developed by Sun Microsystem, right? Sun Microsystem ने Java develop किया है, right? That is the first difference. Second difference is हमें पता है कि .NET needs a heavy framework, राइट हमें बहुत सारी चीजें इंस्टॉल करनी है. अगर हम विजुअल स्टूडियो 2010 की बात करें तो उसका सेटअप ही 2.18 GB का है, मीन्स उसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा होगी. बट दैट इज नॉट द केस विथ जावा बिकॉज इट इज जस्ट अ लाइट वेट लैंग्वेज. उसके अंदर कोई फ्रेमवर्क की जरूरत नहीं है, राइट? ओके. Now if we talk about .NET तो we know कि हमारे पास वहाँ पे एक स्टैंडर्ड डेवलपमेंट IDE that is integrated development environment available है in terms of Microsoft Visual Studio, right? Microsoft Visual Studio, that is the standard development IDE of .NET, वो अवेलेबल है. बट स्पेसिफिक टू जावा ऐसा कोई भी IDE नहीं है कि जिसे हम कह सके दैट इट इज अ स्टैंडर्ड टूल, राइट? उसके साथ बहुत सारे डिफरेंट IDEs अवेलेबल है, बहुत सारे डिफरेंट टूल्स अवेलेबल है जिसे हम थर्ड पार्टीज IDE कहेंगे कि जिसका यूज करके हम उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, राइट? नाउ इफ वी टॉक अबाउट .NET तो हमें पता है कि जो भी .NET का कोड हम लिखते हैं, राइट, वो सोर्स लैंग्वेज फर्स्ट किस में कंपाइल होती है? इट इज कन्वर्टेड इनटू MSIL, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज. और वो कौन कंपाइल करता है? that is CLR, right? That is Common Language Runtime. But if we talk about the Java source code, then obviously first it is converted to bytecode by JVM, that is Java Virtual Machine, right? Okay. Now .NET is of course not an open source. Again I repeat, .NET is not an open source, whereas we can say that Java is an open source, right? Okay. Another important difference, .NET के अंदर ADO.NET अवेलेबल है विच इज अ डिसकनेक्टेड डेटा आर्किटेक्चर कि जिसका यूज करके आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. एंड दैट इज इटसेल्फ प्रेजेंट इन .NET फ्रेमवर्क एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग .NET. बिकॉज .NET की बात करो तो .NET के पास खुद का फ्रेमवर्क है, खुद का IDE है दैट इज विजुअल स्टूडियो, खुद का डेटाबेस आर्किटेक्चर भी है दैट इज ADO.NET कि जिसे हम डिसकनेक्टेड डेटा आर्किटेक्चर कहते हैं, right? So each and everything is available within the .NET, but obviously that is not the scenario with Java because Java के साथ we can't say that okay कोई standard IDE या फिर standard tool available है. आप Java का कोड नोटपैड में भी लिख सकते हो या फिर कोई दूसरा थर्ड पार्टी IDE भी आप यूज कर सकते हो. एंड along with that हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई स्पेसिफिक आर्किटेक्चर अवेलेबल है विद Java to interact with the database, राइट? नो डाउट आप वहां पे JDBC का यूज कर सकते हो, दैट इज जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, दैट इज अवेलेबल, आप जिसका उसका यूज कर सकते हो, राइट? बट ऐसा कोई स्पेसिफिक आर्किटेक्चर वहां पे अवेलेबल नहीं है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी स्पेसिफिक आर्किटेक्चर वहां पे सपोर्टेड नहीं है, राइट? ओके. नाउ अगर हम .NET की बात करें देन देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. First is .NET Framework and support for multiple languages. Again, I repeat, if we talk about two different things, if we talk about .NET, then there are two different things. That is .NET Framework and support for multiple languages. But if we talk about Java, then we can say again, there are two different things available with Java also. That is Java Platform and Java Language. Right? So the difference over here is .NET support multiple languages, whereas we already know that Java itself is a language, right? Okay, so these are the difference between .NET and Java. Now, if we talk about the similarities between .NET and Java, then we can say that both the both the platform, that is .NET as well as Java, has their own runtime environment. अगेन आई रिपीट, अगर हम .NET एंड जावा दोनों की बात करें तो दोनों के पास खुद का रन टाइम एनवायरमेंट अवेलेबल है. दैट इज अगर हम .NET की बात करें तो उसके पास खुद का रन टाइम एनवायरमेंट है दैट इज CLR,
कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। एंड अगर हम जावा की बात करें देन उसके पास खुद का रन टाइम एनवायरमेंट अवेलेबल है, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन, राइट? ओके, now both the things, that is .NET as well as Java, pre-compile their code. Again I repeat, both the things, that is .NET and Java, both pre-compile that code. Pre-compile किस हिसाब से हम कंसिडर करेंगे? ऑब्वियसली अगर हम जावा की बात करें देन इट प्री कंपाइल इट सोर्स कोड इनटू द बाइट कोड, एंड अगर हम .NET की बात करें देन .NET सोर्स कोड इज आल्सो प्री कंपाइल्ड इनटू MSIL, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, राइट? ओके, नाउ another similarity, .NET and Java both supports object-oriented features. Again, I repeat, .NET as well as Java both supports object-oriented features, right? दोनों के साथ object-oriented features available है. Instead of that, we can say कि दोनों ही pure object-oriented features support करते हैं, right? Okay. Next, again, अगर हम .NET एंड जावा की बात करें तो दोनों ही थ्रेड कंसेप्ट को सपोर्ट करते हैं एंड गार्बेज कलेक्शन को भी वो सपोर्ट करते हैं. अगेन आई रिपीट, अगर हम दोनों की बात करें दैट इज .NET एज वेल एज जावा, तो दोनों सपोर्ट्स थ्रेड कंसेप्ट एज वेल एज गार्बेज कलेक्शन कंसेप्ट, राइट? ओके, next is both can be used for desktop as well as web application, of course, राइट? हमें पता है कि .NET का यूज करके हम विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं. लाइकवाइज अगर हम जावा की बात करें तो जावा के अंदर भी हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन दैट इज डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी यूज कर सकते मतलब डेवलप कर सकते हैं एंड वेबसाइट भी हम जावा का यूज करके डेवलप कर सकते हैं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ JSP. जैसे .NET is ASP.NET हम जिसे कहते हैं दैट इज एक्टिव सर्वर पेजेस. लाइकवाइज जावा के साथ JSP है दैट इज जावा सर्वर पेजेस. वो पर्टिकुलर कंसेप्ट का यूज करके हम वेब साइट दैट इज वेब पोर्टल, वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी हम जावा के अंदर डेवलप कर सकते हैं, राइट? ओके, नाउ अनदर सिमिलैरिटी, ऑब्वियसली अगर हम ऐसा कहते हैं कि .NET एंड जावा बोथ सपोर्ट्स प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स, तो वहां पे मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता है. अगेन आई रिपीट, अगर हम ऐसा कहते हैं कि .NET एंड जावा बोथ सपोर्ट्स प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स, तो वहां पे मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होगा, राइट? एंड द लास्ट सिमिलैरिटी, ऑफ कोर्स दोनों के पास खुद का एक्सेप्शन हैंडलिंग फीचर्स अवेलेबल है, right? And we know that within both the platform, that is .NET as well as Java, हम try catch finally concept का use करके हम exception handling को implement कर सकते हैं, right? So students, these were the differences between .NET and Java, and these were the similarities between .NET and Java, right? Okay.